Yes, students. So, once again, very good afternoon to all of you. Good So, afternoon, already sir. we have Good studied, afternoon. yeah. So, already we have studied this equations of motion in class 9th and in class 11th also. We have revised how to find out all the four equations of motion with the help of that elimination method, then with the help of graphical method. And now, as this year you are having some of the this integration differentiation also. So already I told you what is differentiation, what are the formulas related with differentiation, and integration. So by integration, that calculus, differentiation and critical calculus, how to derive these equations, quickly we will do that. So just have a recap of that. What is differentiation and integration? आपको मैं बता ही चुका हूँ. तो डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर n का, तो क्या होगा n x टू द पावर n माइनस वन. ऑन द अदर हैंड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर n को अगर इंटीग्रेट किया तो x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन. इतना होता है, हम जानते हैं. So with this note, we are going to now use this calculus in finding out the these what our equations of motion. So are you able to see this? Yes, sir. Yes, Equations of sir. motion in terms of calculus. So whatever is required, I will do calculate, but some of the terms are here written. So let us do first equation of motion. हम लोग करेंगे. तो आप लिखते भी जाइएगा. Here it may not be written. So you write if dv is the change in velocity in time dt. dv is the change in velocity in a time dt. Then the uniform acceleration produced in that in that body is a, suppose. Then we can write a is equal to dv by dt. So this equation we very well know. है ना. तो हम इसको लेकर के चलेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालते हैं. तो एज a इज इक्वल टू dv बाय dt, so just if we cross multiply, we will get dv is equal to a dt, right? And we are here to find out the v. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at हमें लाना है, राइट? तो अगर ये लाना है हमें, तो हमें v चाहिए, dv नहीं चाहिए. dv इज दैट पार्ट, जैसे बताया था ये डिफरेंशिएट है. अगर इसको हम क्या करेंगे, dv हमारे पास है और हमें चाहिए v, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमने बताया था छोटे से हमें पूरा चाहिए, तो हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा Integration. Integration. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन. सो जस्ट यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, है ना. तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दीजिए. सो यू राइट इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, यू कैन नेम इट इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट फ्रॉम वेयर टू वेयर. हाँ, अभी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आपको बताया हुआ है. तो अगर मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियल केस में जो वेलोसिटी है वो है हमारी u, राइट? और t इक्वल टू t हो जाए, समय हो जाए, तो वेलोसिटी v हो जाती है हमारी. तो हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? u से v तक. या कभी कभी हमने बताया आपको कि उसको v नॉट भी बोल देते हैं. v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी. सो यू विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम what this side you will integrate from u to v or v naught to v, and right side you will integrate it as it is dt. The variable is t. T is changing. This acceleration is constant. So t is changing, so you will integrate it from 0 to t. If we are considering initial time is 0, तो हम इनिशियल टाइम जनरली 0 लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप t1 और t2 भी ले सकते हो. यू कैन टेक दिस इनिशियल टाइम t1 एंड फाइनल टाइम t2. बट हियर फॉर सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग 0 and t. So just integrate it, integrating both the sides. You see. Okay, and now you know how to integrate. तो अगर अब ये बताइए v नॉट टू v इंटीग्रेट किया. अभी मैं v नॉट ही लिख रहा हूँ कि सर ने, मनी सर ने यहाँ पर v नॉट लिखा हुआ है. So we will go with v नॉट. But if you are more familiar with u, you can replace v नॉट by u. तो मैंने यहाँ आपको बता दिया है, right? Now dv, dv ये है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है. तो कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बच्चों? 0 तो होगा नहीं, 1. So 1 is there. And here this is a which is a constant. अच्छा, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, तो उसको हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, वो कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है.
any variable is there, that variable can be integrated, can be differentiated, but a constant term will always come out of the integration. So हम इसको बाहर निकाल लेते हैं. चलिए, तो a को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया है. और यहाँ पर जब 1 है तो हमें तो इंटीग्रेट करना है इसको. तो 1 मतलब क्या बोल सकते हैं, 1 को हम यहाँ पर dv है वेरिएबल, तो यहाँ पर 1 को v to the power 0 बोल सकते हैं क्या हम? Can we say that it is v to the power 0? Yes, sir. है ना? Yes, Because sir. जानते हैं ना x to the power 0 क्या होता है, 1. तो हम v to the power 0 is equal to 1 मान सकते हैं. तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये v to the power 0 है, तो ये v to the power 0 है हमारा. So we are integrating it from v naught to v, and what, to whom we are integrating, v to the power 0 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. और यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, a इंटू यहाँ पर हम, यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, t to the power 0 ले लेंगे. So t to the power 0 को 0 to t हम इंटीग्रेट करेंगे. So is it okay? Any doubt in this? Understood this much? तो अगर इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, v to the power 0 का इंटीग्रेशन बताइए जरा मुझे. ये v नॉट है और ये v to the power 0 है. तो v to the power 0 का इंटीग्रेशन हो गया v to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, right? And this we will substitute v naught to v, right? इसी तरह से ये a बाहर निकला और ये क्या हुआ बच्चों, अच्छा इंटीग्रेशन कर दिया मैंने अभी. तो इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, t to the power 0 plus 1 upon 0 plus 1, और ये क्या हो गया यहाँ से 0 to t. ये बात समझ में आ गई बच्चों, कल जो मैंने बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. चलिए अभी इसको मैं रब कर देता हूँ पूरे को, इरेज, और यहाँ डायरेक्ट सर ने किया हुआ है वो आप देख लीजिए. सो दैट यू कैन डायरेक्ट, सिंस a इज कांस्टेंट, तो ये हमने कर दिया. अच्छा, अभी उसके बाद की स्टेप हम लिखते हैं. चूंकि v टू द पावर 0 हो गया था और यहाँ कितना आ गया था बेटा, v नॉट टू v आ गया था, सॉरी v टू द पावर 0 नहीं, 1 आ गया था. v टू द पावर 0 प्लस 1 1 हो गया. यहाँ पर क्या हो गया, a बाहर आ गया और यहाँ हो गया था t टू द पावर 1 आ गया अपॉन 1 और 0 टू t आ गया. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार v रखेंगे और एक बार v नॉट रखेंगे. तो हमने v रखा तो v हो गया माइनस v नॉट इज इक्वल टू, a बाहर है, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, एक बार t रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो t माइनस 0 हो गया. सो t माइनस 0 अपने आप में क्या होता है, t होता है ना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको. तो ये बन गया हमारा v माइनस v नॉट इज इक्वल टू at, और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, or we can say it v is equal to u plus at. So this is nothing but our first equation of motion. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेज कर रहा हूं मैं. तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं. चलिए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलते हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले तो अपने दिमाग में रखिए, क्या लाना है हमको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s मतलब क्या, s या बोल सकते हैं x, है ना, x माइनस x नॉट, है ना, x माइनस x नॉट बोल सकते हैं इसको, है ना. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट s. तो उसके लिए हम कौन सा इक्वेशन लेके चलेंगे बेटा, v इज इक्वल टू dx by dt, where you write that dx is the small displacement in a time dt. In a small time interval dt, suppose the displacement taken place is dx. So we can say our definition of velocity से हम लिख सकते हैं v is equal to dx by dt. Is it okay? है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा आप पहले लिख दीजिएगा शब्दों में. और फिर हम इसको हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x. तो क्या करेंगे बच्चों, x निकालना है तो हम dx को पहले निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx ले लेते हैं. ये रुका. अब क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ, हमें तो x चाहिए, फिर वही बात, dx हमारे पास है, हमें चाहिए x. तो अगेन व्हाट यू विल डू, यू विल इंटीग्रेट. चलिए कर दीजिए. लेकिन अभी हमारा मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या है, x नॉट है, और t इक्वल टू t समय हो जाता है तब x इक्वल टू x हो जाता है. तो हमारा लिमिट क्या होगा, इनिशियल लिमिट होगा x नॉट और फाइनल हो जाएगा x. और टाइम क्या होगा, शुरुआत का टाइम 0, बाद का टाइम t. कर लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद इन लिमिट्स, ऐसा भी लिख दीजिए आगे, है ना, विद इन लिमिट्स इंटीग्रेटिंग बोथ द
साइड्स, और कर लीजिए, बस खत्म। देखो आप लोग सब करना जानते हैं, है ना। चलिए, और वो कर देंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया है, वो हम बाद में भी रख सकते हैं। खैर चलो, इन्होंने पहले रख दिया है, कोई बात नहीं। ये v ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, v की वैल्यू, अच्छा इसको 1 ले लो, बट एज वी नो दैट v is equal to v naught plus at, already we have derived, so we will be putting that v के जगह पर हम by using 1 and 2 ये रख देते हैं। चलो, ये बाद में भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, तो ये हम पहले या बाद में इसको रख देते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस? So v is equal to v naught plus at हम ऑलरेडी जो डिराइव कर चुके हैं वो रख दिया, एंड नाउ यू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद इन द लिमिट्स। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। चलो आप लोग करेंगे इसको अभी या मैं करूं, बताइए। विल यू ट्राई टू डू इट? सी x नॉट टू x, और यहां पर हम क्या करेंगे, 0 to t, राइट। चलिए मैं कर देता हूं आज, लेकिन जो लोग कर सकते हैं साथ साथ में मेरे, या उसके पहले, मेरे से पहले करते जाए, इसलिए मैंने आपको समय दिया है। सी 0 to t, नाउ यू ओपन द ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर दो टर्म्स हो गई हैं, हमें भी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में राइट साइड में यू नो दैट यार 2 टर्म्स आर कमिंग, तो यहाँ पर भी हमारे 2 टर्म्स आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम, अपने आप आएंगी। So open the bracket with the 0 to t. So what will happen? I will do here. Okay. So this is nothing but 1. So it will be written as x to the power 0. Right. And I am integrating it from x to naught to x. Right. Dx. Here also when I open it, it is coming nothing but this v naught dt plus 0 to t at dt, राइट। ऐसा ओपन हो गया बेटा, ये dt और 0 to t ऐसे इंटीग्रेट कर दिया मैं पूरा ही कर देता हूं। अब x to the power 0 का इंटीग्रेशन हुआ, 0 plus 1 that is 1 upon 1, तो डायरेक्टली कैन आई राइट x, कैन आई राइट x? यस या नो, तो बताओ बेटा। Yes, sir. और 0 Yes, sir. plus 1 upon 0 plus 1, so directly I can write x, है ना, by integrating and putting these limits. यहाँ पर बताओ v naught again it is a constant because it is the initial velocity, so initial velocity cannot change, है ना। initial जो थी velocity वो तो रहेगी, है ना, उसको थोड़े आप चेंज कर सकते हो, so that is a constant again, तो इसको हम बाहर निकाल लिए v naught को, राइट। और अंदर बचा 1, तो 1 को क्या लेंगे, t लेंगे, t की पावर 0, t की पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन वो t की पावर 0 प्लस 1 होगा, दैट इज t इक्वल टू t अपॉन t टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट विल कम t ओनली, एंड लिमिट इज 0 टू t, राइट। चलिए प्लस, अब बताइए इसका क्या होगा, a बाहर आ जाएगा, a इज अ कांस्टेंट, एंड t का इंटीग्रेशन बताइए, चलिए जल्दी से, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1, हु विल टेल मी? Integration of t to the power 1, direct T बताओ। square by 2. t square और by 2. by 2, वेरी गुड। Square by 2. हाँ, तो ये हो गया, बस खत्म बात, चलो करो, ये आ गया। तो ये अपर लिमिट रखा x माइनस x नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा v नॉट है यहाँ पर, और ये t माइनस 0 हो जाएगा, प्लस ये हाफ तो बाहर निकाल लो, हाफ a, अब बताओ ये t स्क्वायर रखेंगे माइनस 0 स्क्वायर, तो अपने आप क्या आ जाएगा, ये t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट t स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों, आ गया कि नहीं आंसर हमारा, x माइनस x नॉट, और x माइनस x नॉट इज नथिंग बट द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट एज x s v नॉट t, तो आप चाहो तो u लिख लो इसको, ut प्लस हाफ क्या हो गया, a t square हो गया। So we have derived this equation very nicely, though my handwriting is not coming here very nice because it is not a whiteboard, it is a blackboard. Okay, वो whiteboard पर अच्छा आता है, but are you able to understand this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा, अपने आप लिख लेना बेटा इसको, हाँ
तो सही रहेगा। चलिए, तो यहीं के यहीं लिख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट किया होगा सर ने, बिकॉज दे सर थिंग्स दैट यू नो ईच एंड एवरी स्टेप, सब कुछ जानते हैं आप लोग। चलिए, तो ये इन्होंने खोला, देखिए नहीं किया, इन्होंने भी स्टेप कर लिया है। नाइस, वेरी नाइस। बट इवन अगर नहीं किया जाता है, यू शुड बी एबल टू नो, बिकॉज धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी इंटीग्रेशन की, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर भी डायरेक्टली आप लिख दोगे वी नॉट इंटू टी माइनस जीरो मतलब टी, और यहाँ भी डायरेक्टली टी स्क्वायर लिख दोगे आप, और ये हाफ बाहर लगा दोगे। तो ये विथ प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। मैन परफेक्ट बोलना भी ठीक नहीं है अभी। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, है ना। पर्सन में भी मैन और वुमेन, है ना। सो ये सब जो कहावतें भी है ना, थोड़ी सी हमको बदलनी है नए रिस्पेक्ट में। चलिए, तो ऐसा ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चलते हैं अपन, है ना। चलिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लेके चलेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब 2as अगर हो रहा है तो यहाँ पर t नहीं है, तो वी हैव टू एलिमिनेट t हियर, और हमें लाना क्या है, s लाना है, a लाना है, बट हमें एलिमिनेट क्या करना है, t। तो t को जरा एलिमिनेट कर सकते हैं क्या हम लोग यहाँ से, कैन वी एलिमिनेट t? तो थोड़ा सा एक हम लोग चतुराई दिखाते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ लिख देता हूं बच्चों, इस तरह से लिख देता हूं मैं, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ dx से, है ना। यहाँ पर भी वैसे लिखा, s लिखो या x लिखो, है ना। इन्होंने s लिख दिया है, x तो x लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी चतुराई क्या दिखाई, यहाँ पर मैंने dx लिख दिया और यहाँ पर dx लिख दिया, dv अपॉन dt है, चल सकता है, नो प्रॉब्लम। कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी? यस सर। हाँ, अभी Yes, sir. हाँ इंटेंशनली ये काम किया है, सो दैट मेरा क्या निकल जाए, dx अपॉन dt को अभी मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, dx अपॉन dt को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। dx dx अपॉन dt क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। v, हाँ v। तो मुझे चाहिए था भाई a आ गया, dv अपॉन dx आ गया और v आ गया, तो हम धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं dt को। अब हम बाकी चीजें लाते हैं, x तो है हमारे पास, तो s आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वही इंटीग्रेशन का हमारा काम हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ये a dx हो गया, dv इंटू v हो गया। ये dv v ऐसा कभी भी नहीं लिखना, dv दिस इज dv इज अ पार्ट ऑफ v, और ये v इज डिफरेंट, तो dv के साथ कभी भी v नहीं लिखेंगे हम, v dv लिखेंगे। ये v पूरा है और ये पार्ट ऑफ v है ना। तो ये ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं dv और v लिखा है तो वो सोचेंगे v इंटू v स्क्वायर, तो dv स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा, अंडरस्टूड, ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बी कॉशियस, ये v इंटू v स्क्वायर नहीं होता, दिस इज डिफरेंट, है ना। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस विद दिस, राइट सोनिया? हाँ, समझ में आ रहा है बेटा, एनी डाउट? कैमरा ओपन है, ओके। कहीं माइक ऑन है बेटा? चलो, चलिए इंटीग्रेट करिए। नाउ सपोज, अभी टाइम का तो खेल ही नहीं है, लेकिन t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए, I will just call that out. Yeah, so now at t equal to 0, suppose the initial velocity is u and the displacement is x naught, and at t equal to t the velocity is v and the displacement is x, मान लीजिए, है ना। ये ऐसा आप लिख लीजिए। So integrating both the sides under these limits, है ना, within these limits. So limits में integrate कर दीजिए जल्दी से। Okay, now integrate it. चलिए, नाउ आई थिंक आप लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, आदत हो गई आपको। चलिए बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। राइट, ये a बाहर निकल गया और यहाँ अंदर 1 है, 1 dx 1 का हो गया x, राइट।
सो इफ आई फर्दर डू इट, तो 1/2 बाहर आ चुका है, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a x माइनस x नॉट, राइट? हो गया? तो ये आ गया हमारा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाइए, so you will get 2 into a into x minus x naught, and that x minus x naught, if you wish, you can write s, and this v naught square you can write u square also. So this way you have got your third equation of motion. So this way हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है ना? So v square minus v naught square is equal to 2a into x minus x naught. तो ये हमारा आ गया। इसी को आप हम लोग जो आप लोग जानते हैं वो इस रूप में जानते हैं 2as. So you can write that x minus x naught, the final position minus initial position, is a displacement, and if that displacement is denoted by s, you can write the equation in this way. So these are the three equations of motion we have derived. Now coming to a very important and last topic of this chapter, and that is nothing but relative velocity. Relative velocity, that we will complete today as the time permits, because 25 minutes are remaining. So relative velocity, तो पहले तो हम बात करते हैं कि शुरू में हमने जो बात की थी तो हमने बताया था कि दिस मोशन एंड रेस्ट, दीज आर रिलेटिव थिंग्स, है ना? कोई भी चीज ना तो पूरी तरह से एब्सोल्युटली मोशन में है या एब्सोल्युटली रेस्ट में है, they are with respect to something, they are at rest or in motion, है ना? तो ये हमने शुरू में पढ़ लिया था। तो हर चीज रिलेटिव है, तो वेलोसिटी भी रिलेटिव है, लेकिन जनरली हम लोग पहले क्या कर रहे थे अभी तक कि हम जो भी वेलोसिटी निकाल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट निकालते थे। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए रिस्पेक्ट में निकालते थे या स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते थे, तो हमारी जो वही जो होती थी, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो गया तो ये जो दूसरी वेलोसिटी होती थी वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाती थी, हम ले लेते थे। लेकिन अगर वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं या पोजीशन निकाल रहे हैं, वो खुद भी अगर चल रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है और दूसरे की वेलोसिटी क्या है। इन दोनों की वेलोसिटीज का कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो उस रिस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा समझा दूं कि भाई क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक स्टेशनरी आपको बताया था, एक हमने ट्री ले लिया था शुरू में, एंड विद रिस्पेक्ट टू ट्री अगर एक बस जा रही है, यहाँ पर है ना, बस जा रही है, तो ये बस मान लीजिए आफ्टर 1 hour this bus has what reached suppose 40 kilometer from here, 40 kilometer from this tree. तो हम लोग क्या बोल देते थे कि भाई इस बस की एवरेज स्पीड ही होगी, एग्जैक्टली तो क्या होगी, कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर का फासला तय कर लिया टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन है, चलो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं, ये यहाँ पर इतना फासला तय कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे उसकी वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी है भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, 40 है, 40 किलोमीटर कितने घंटे में है? 1 hour में है। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इफ वी से दैट अगर डायरेक्शन के हिसाब से बोलना है तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, टुवर्ड्स ईस्ट है ना, ईस्ट। इज इट ओके? with respect to this tree, because this tree is stationary. Understood? Clear? Yes, sir. कोई चलिए। अब लेकिन हो क्या रहा है, ये मान करके चल रहे थे कि ये सारी वेलोसिटी उस तरह से और वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। ऐसा नहीं है कि वो जो जिस रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो स्टेशनरी हो, वो भी मोशन कर रहा है। तो हम ऐसी कंडीशन हम लेते हैं कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो भी मोशन में है। और वो मोशन में कैसे है, चलिए मान लीजिए ये बस हुई और हमारी जो है दूसरी हमारी एक स्कूटी है या स्कूटी है, आप स्कूटी से जा रहे हो, राइट साइड में आप जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, और द स्पीड ऑफ योर स्कूटी है ना, तो ये स्कूटी लेकर के एक बच्ची जा रही है और उस स्कूटी की स्पीड
डेफिनेटली कम ही होगी। 40 किलोमीटर पर आवर से अगर ऑन एन एवरेज देखें तो मान लीजिए 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए बच्चों, मुझे ये बताओ कि क्या हो गया, सॉरी क्या हो जाएगा बच्चों 1 घंटे बाद। अब ये बस भी कहाँ जा रही है, बस भी देखो इधर जा रही है ना, बस भी राइट साइड में ही चल रही है, बस भी इधर जा रही है, बस 40 से जा रही है, और अब बस है ना बस, और ये आपकी स्कूटी है वो 30 से जा रही है। तो बताओ 1 घंटे बाद ये स्कूटी तो पहुंच गई 30 किलोमीटर दूर, ये जीरो था चलो है ना, यहाँ जीरो से स्टार्ट हुई, 30 किलोमीटर दूर पहुंच गई, और बस कहाँ पहुंच गई बच्चों, 40 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है, राइट, बस पहुंच चुकी है 40 किलोमीटर दूर। अब ये बस यहाँ पर है और स्कूटी यहाँ पर है 1 घंटे बाद, राइट। तो बताइए अभी इन दोनों के बीच का 1 घंटे बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, दोनों साथ में शुरू हुए लेकिन 1 घंटे बाद बस पहुंच गई है 40 पर और स्कूटी पहुंच गई है 30 पर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस स्कूटी एंड बस आफ्टर 1 hour? 10 kilometers. 10 kilometers. 10 So kilometers. this is 10 kilometer. So what we can say, the velocity of bus, with respect to the stationary tree, जो tree था वो यहीं पर है, तो with respect to the stationary tree, the velocity of bus is 40 kilometer per hour, no doubt, because 40 मतलब 40 किलोमीटर दूर आ गया। With respect to this tree, the velocity of the scooty is 30 kilometer per hour, no doubt. But if I want to ask you about what is the velocity of bus with respect to scooty, what is the velocity of bus with respect to scooty? 10 kilometer 10 kilometer what velocity है बोलिए, 10 kilometer per hour per hour towards east. ईस्ट है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट, अंडरस्टूड। तो ये बात आपको समझ में आ गई भाई, बहुत बढ़िया है ना। तो ये हमने कैसे निकाला, मतलब तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो दैट इज दिस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी, वो बोथ आर इन मोशन है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी इज 10 kilometer per hour, means after 10 kilometer the bus is ahead of scooty by 10 kilometer. So we can say that the relative velocity of bus with respect to scooty is 10 kilometer per hour, ऐसा बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ये अच्छा, इसी का उल्टा बताइए, ये स्कूटी है, तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस, वो क्या हो जाएगी। पहले 1 किलोमीटर 1 घंटे पहले दोनों साथ में थे, अब स्कूटी क्या हो गई है। हाँ कुछ बोल रहे थे आप। -10 kilometer per hour. -10, वो पिछड़ गई है, तो हम बोलेंगे कि वो -10 किलोमीटर पर आवर है रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस। द स्कूटी इज बिहाइंड नाउ बस, सो वी कैन से दैट इट इज बिहाइंड द बस आफ्टर 1 hour, इट इज बिहाइंड द बस, है ना, बाई 10 किलोमीटर इट इज लैगिंग बिहाइंड द बस बाई 10 किलोमीटर। सो हम इस रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं -10 है, क्योंकि नेगेटिव में ना, अगर हम ये देखें तो विथ रिस्पेक्ट टू बस ये नेगेटिव में इस तरफ जा रही है और बस आगे की तरफ है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि अभी मैं बोलूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी, ऐसा लिखूंगा मैं। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारा जो चल रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी मींस कैसे निकाला हम लोगों ने, हमने तो ओरली कर लिया, लेकिन अब फॉर्मूले फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसा लिखेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बस, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बस माइनस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्कूटी। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 40 - 30 आ गया कि नहीं बच्चों, 10 देखो,
तो ये हमारा फार्मूला ही हमने बना दिया एक तरह से बोलो तो, है ना। क्या बन गया हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी इज वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ स्कूटी, राइट। सो दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ये रिलेटिव वेलोसिटी को समझ सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात आपको? चलिए, यस सर। वेरी गुड। तो Yes, अब sir. आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं इस के ऊपर बेस्ड। तो अभी हम, ये कुछ इरेज नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं क्या करते हैं एंड शो करके आई विल जस्ट अगेन स्टार्ट इट, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी यू अंडरस्टूड, राइट। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। इन्होंने क्या बोल दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी। इरेजर इज आल्सो नॉट हाइलाइटेड द पेन। सर आपने की डिस्चार्ज किया था ना? हाँ, सेव कर दिया था शायद मैंने ना। ओके ओके ओके, सो आई शुड मूव आउट, आई थिंक आउट ऑफ इट एंड देन आई शुड कम, और अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू कैन अंडरस्टैंड। आई थिंक कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप समझ सकते हैं, ये लिखा रहेगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर आप va is the velocity of a and vb is the velocity of b, then we can easily write vab, that is relative velocity of a with respect to b। इसको बोलने का तरीका ये होता है। तो relative velocity of a with respect to b is equal to va minus vb। जस्ट इसका उल्टा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू vb माइनस ba, जैसे हमने अभी देखा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हमारी क्या बोली हमने, स्कूटी विथ रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू क्या हो गया, 30। यहाँ पर 30 आ जाएगा, देखो b हमने बस नहीं मतलब स्कूटी ले लिया यहाँ पर, तो 30 माइनस 40 हो गया, सो इट विल बी माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ये आपको जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरे पेज ले लेता हूं मैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोगों को अगर दिया होगा तो जनरली ए और बी नहीं लेते हुए 2 और 1 लिया जाता है। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट है 2 और फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है। सो इफ वी विश टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, we simply write v2 minus v1। तो v2 minus v1 is the relative velocity हो जाती है। लेकिन ये तो अभी क्या बात थी बच्चों, बताओ, कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब v2 minus v1 हमने कर लिया, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था 40 था, ये भी 30 था, तो 40 minus 30 हमारा सीधा आ गया 10 आ गया, राइट। अभी इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं, स्कूटी को मैं इधर चला रहा हूं और बस को मैं इधर चला रहा हूं। चलिए बताइए, पहले यहां पर थे, 0 पर थे बिल्कुल, अभी 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा बताइए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी आफ्टर 1 आवर? टेल मी, प्रैक्टिकली बताइए, फिर अपन फॉर्मूले से बाद में देखते हैं। 70 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ, 70 किलोमीटर वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी इज 70 किलोमीटर, राइट, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। राइट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट। तो सीधा 70 हो गया, क्योंकि 1 घंटे बाद ये होगा कहीं तो भी 30 यहाँ पर, और ये 0 था, ये होगा 40 पर। तो 40 और 30 इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी जो है स्ट्रेट वे फिर 70 हो गई, तो इसलिए वो 70 आ गया। इसी को हमको यहाँ पर अगर इसी को फॉर्मूले से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, v21 या वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू स्कूटी, हमें जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा बताइए। v2 तो हम सीधे 40 रख देंगे, नो इशू, और फार्मूला हमारा माइनस का ही है बच्चों, फार्मूला यस माइनस 30 आएगा। yes, minus of minus 30। why it is minus of minus 30? minus is in the form उल्टा जा रहा है, yeah, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव है ना, हमारा ओरिजिन से हम इधर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ माइनस आएगा। सो फॉर्मूला हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का याद रखना है हमेशा, v21 is equal to v2 minus v1 only, that is not going to change, but only thing is that if they are in opposite direction, so one who is going in the left direction we will take it minus,
So ultimately minus of minus will become plus. So it will become 40 plus 30 is equal to what? 70. 70. Same thing. The velocity of scooty with respect to बस क्या हो जाएगी? यहाँ पर आ जाएगा हमारा -30 minus of 40. So -10. -30 और -40 will be -70. यहाँ -30 आ जाएगा उस केस में, है ना? अगर हम V2 वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विथ रिस्पेक्ट टू बस निकालूंगा तो -30 होगा पहले और माइनस में फिर 40 तो प्लस का ही है, तो ये -70 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, घुमा घुमा के कैसी भी तरह से। नाउ द सेम दिस रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स, है ना? पोजीशन टाइम ग्राफ से हम इसको समझते हैं बहुत बढ़िया से कि इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ जा रहे हैं, है ना? एक सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी उनमें क्या है उसके आधार पर हम थोड़ा सा इनका ग्राफ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, when two objects move with the equal velocities, इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो बताइए उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? एक जा रहा है, चलो इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, मान लीजिए एक 0 से शुरू हुआ है, एक 10 किलोमीटर दूर से शुरू हुआ है, एक बस यहां से शुरू हुई, एक यहां से शुरू हुई, राइट? चलिए ये दो बसेस हैं, ये यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, दोनों 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हैं। व्हाट इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड बस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं, लिखते ही रहा हूं। यहाँ स्क्रीन नहीं विजिबल है? विजिबल है सर, विजिबल है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ये देखो। आर यू एबल टू सी मी? सो दीज आर टू बसेस। आर यू एबल सर टू? वो बसेस नहीं दिख रहे हैं। अरे बसेस नहीं दिख रही है, ये देखो अभी सर के वेबकैम से वो वेब कैम पे देखो, मेरे वेब कैम पे देखो, ये बस हो गई मेरी। मुझे देखिए, मुझे ओ हाँ सर सर। दिख रहा है। ये हाँ, देखो सर। दो बस हो गई। पेंसिल को मैंने बस बना दिया, बेटा क्या है, क्या फर्क पड़ता है ना? बढ़िया है ना बसेस, है ना? चलिए, दो बसेस जा रही हैं, है ना? ये यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ अभी दोनों एक साथ शुरू हुई और दोनों 40 की स्पीड से जा रही है। सो टेल मी आफ्टर 1 hour व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बस? सर डायरेक्शन बसेस का दिखाने। सेम डायरेक्शन में जा रही है। सर दोनों बसेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट सर, चलिए 0 10 किलोमीटर है, चलिए 10 किलोमीटर ले लीजिए। दोनों बसेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट, पहले का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है और अब ये सेम स्पीड से शुरू हो गए 40 किलोमीटर पर आवर से। सो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड बस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बस? सर, एज पर द फॉर्मूला 0। या व्हाट एज पर द फॉर्मूला? सो फॉर्मूला जाने दो, अभी फॉर्मूला हमको नहीं आता है, मुझे प्रैक्टिकली बताओ क्या होने चाहिए। फॉर्मूला चलो बात की बात करते हैं, वो फॉर्मूले से भी हम प्रूव कर लेंगे, लेकिन पहले बताइए व्हाट शुड बी द रिलेटिव वेलोसिटी? 10 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, पहले उनके बीच में अभी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है, राइट? ओके, अभी एक घंटे बाद एक पहुंच जाएगी 50 किलोमीटर दूर, दूसरी कितनी दूर पहुंच जाएगी? 40 किलोमीटर दूर, राइट? हाँ सर। यस सर। Okay, from this origin. So what is the displacement between them after 1 hour? What is the displacement? What is the 10 kilometer only? है ना? So initially भी उनके बीच का distance 10 किलोमीटर था, फाइनली भी 10 किलोमीटर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो क्या हो गया? 0, है ना? तो पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है, तो x माइनस एक्स नॉट इज 0। पहले x नॉट हमारा 10 था, x भी 10 है, so x minus x naught is 0. So if displacement is 0 in 1 hour, so what is the relative velocity between them? 0. सिंपल बात है ना? प्रैक्टिकली सेकंड बस एक घंटे पहले भी 10 किलोमीटर दूर थी पहली बस से, और एक घंटे बाद भी वो 10 किलोमीटर ही दूर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बस तो वो मूव हुई नहीं है,
So that means the relative velocity of second bus with respect to first is 0. Similarly, relative velocity of first bus with respect to second bus is also Zero. 0. Zero. हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पहले दिन जब मोशन और रेस्ट पढ़ाया था कि you both of you friends are moving in a bus, है ना? So what is the relative velocity of you people with respect to each other? Zero. आपकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थोड़ी मूव हो रहे हैं। आप आजू बाजू में बैठे हुए, मान लीजिए 6 फीट की दूरी, अभी कोरोना चल रहा है तो 6 फीट की दूरी पर बैठे हुए हैं, तो 1 घंटे पहले भी आपके बीच की दूरी 6 फुट थी और अभी भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी 6 फुट ही है। सो दैट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन यू। सो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है, बट विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स योर वेलोसिटी इज नॉट 0। तो वही बात यहाँ पर है। तो अब हम इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं दोनों, चलिए, है ना? अभी इक्वल वेलोसिटीज वाला ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से आप बना लीजिए। देखो, ये देखो, शुरू में क्या वेलोसिटी है उसकी, ये देखिए एक्स ए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो है टाइम 0, तो ऐसा लिखते हैं हम 0, दैट मीन्स एक्स ए इज अ टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो एक्स ए 0, दिस टी 0 है, टी इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशन एक्स ए है, और टी इक्वल टू 0 पर किसी दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन कितनी है, एक्स बी 0 है। मतलब हो सकता है ये मैंने जो एग्जांपल बताया, ये कितनी है, 10 किलोमीटर, जो मैंने एग्जांपल बताया था 10 किलोमीटर है। अब मान लो वो कितना समय हो गया, 1 घंटा हो गया, ये देखो 1 आवर हो गया, ये आवर ले लेता हूँ चलो मैं ना, यहाँ पर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर ऑल्सो व्हाट इज दैट, ये कितना है, ये यहाँ पहुंच गई, ये दूसरी वाली यहाँ पहुंच गई, वापस से इनके बीच का डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर से 10 किलोमीटर ही है ना? तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये कैसे जा रही हैं, देयर रिलेटिव वेलोसिटी 0। तो देखो इनके बीच के ग्राफ कैसे बन रहा है, इनकी स्पीड सेम है, देखो तो स्पीड सेम है तो क्या है, इनका क्या है, स्लोप ऑल्सो सेम है। If their slopes are same, that means their velocities are same. Same velocity से जा रही हैं, same velocity जा रही है, तो उनके बीच का देखो आप यहाँ देख लो, ये वाला जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वो सेम है। और these graphs are also parallel, तो आप याद रखिएगा, if two objects or 2 or more than 2 objects, no issue, है ना? If 2 or more than 2 objects are moving with equal velocities, then their graphs will be parallel to each other. The position time graphs will be parallel to each other. अब वो ग्राफ्स यहाँ से शुरू करो आप या यहाँ से शुरू करो, हो सकता है ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाए, एक और कोई VC आ जाए, सी कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये बिल्कुल इस तरह से चलेगा। अगर वो भी सेम वेलोसिटी चल रहा है तो इनका स्लोप देख लीजिए, तीनों का स्लोप सेम है, एंड स्लोप डिनोट्स द वेलोसिटी। तो ये भी 40 की स्पीड से चल रहा है, ये भी 40 की स्पीड से, और ये भी 40 की स्पीड से चल रहा है, तो ऑल दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? हेलो? यस सर। Yes, So sir. when two objects move with unequal velocity, अब देखते हैं अनइक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, और अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन सेम चल रही है। So when two objects move with unequal velocities, तो अनइक्वल वेलोसिटीज में हमने मान लिया भाई कि ये VA है नीचे वाला, ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, मतलब पीछे वाला, नीचे वाला मतलब पीछे वाला। अब पीछे वाला फास्ट चल रहा है तो क्या होगा, कॉमन एक्सपीरियंस से बताओ। हाँ, देवलाली से आप शुरू हुए और ये दूसरा जो है वो संसारी नाके से शुरू हुआ, हाँ, लेकिन पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, तो बताओ कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसको ओवरकम, ओवरटेक कर देगा ना, क्रॉस कर जाएगा, है ना, ओवरटेक कर जाएगा, है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। तो ये कहीं हो सकता है ये विहित गांव के पास आते आते ओवरटेक कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी। जो देखिए ओवरटेक करेगा तो वो पॉइंट जो जहां ओवरटेक करेगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, उस पॉइंट पर दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। सो लेट अस सी दैट वंडरफुल पोजीशन, या मीटिंग पोजीशन। तो ये है हमारा देवलाली KV1, ये KV1 से शुरू हुआ, ये बेचारा जो है थोड़ा सा संसारी नाके से शुरू हुआ, संसारी गांव संसारी नाके से, और ये यहाँ पर आते आते इसने क्या किया, ये विहित गांव पहुंचा, पुल के पास विहित गांव के आसपास इतने क्या कर दिया,
क्रॉस। अब ये क्या हो गया, आगे निकल गया भाई, अनुराधा थिएटर के पास आते आते ये आगे निकल गया और बिटको कॉलेज के पहुंचते ये बहुत आगे निकल गया। तो ये इस तरह की कंडीशन हमारी डेली लाइफ में हम लोग, और ये मीटिंग टाइम हो गया और ये मीटिंग पोजीशन हो गई। तो इस तरह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, है ना, तो क्लियर है पोजीशन टाइम ग्राफ, VA इज ग्रेटर देन VB। जस्ट इसका उल्टा, अगर VA स्मॉलर देन VB हो तो क्या होगा? Will they be able to meet? No, sir. No, they will never meet, never meet. कभी मीट ही नहीं कर सकते, डाइवर्ज हो जाएंगे, है ना, डाइवर्ज हो जाएंगे। ये पिछड़ता चला जाएगा बेचारा, ये तो इसकी स्पीड कम है, तो ये पहले बेचारा देवलाली KV1 से निकला और ये संसारी से निकला, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे इसकी जो है स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये इससे दूर होता चला जाएगा। They are not going to meet anywhere. So these relative velocities you can easily understand with the help of these graphs. So I hope it is very much clear to you. And these are the acknowledgements Mani sir has given because the material they have taken from the part 1 class 11th NCERT book में भी है ये, and body of car and other working of man, all those things sir has taken from the net. So this way acknowledgement also we should give, and I acknowledge that I am using I have used the PPT made by our Honorable Mani sir. So this way we can understand this very nicely. So thank you very much for this session. In the next session we will do some of the exercise problems based on this equation of motion as well as the relative velocity. Wonderful problems. You are also now given the homework to go through the exercise problems, especially the smaller problems, and then we will do it tomorrow. So tomorrow we will finish in this way, and from day after tomorrow we will start our motion in a plane. So far we were restricted ourselves in a straight line motion. अभी हम थोड़ा सा आपको फ्रीडम देंगे, एंड फ्रीडम लेकर के हम कैसे मूव करेंगे